I said already to every one of you from here in Canada, और आपके हिसाब से आपको गुड इवनिंग, जाते हुए जब फिनिश करेंगे फिर गुड नाइट कहेंगे. So I welcome you all in this webinar meeting of today. I'm going to present a case, and through the presentation of the case we will learn the remedy. Of the case we will learn the remedy. What happens generally is that in our clinics, if we are really very much observant of the patient and we are objectively conscious, most of the cases are cracked within the first 5 minutes of taking the case. And as the cases proceed further, your mind gets more illuminated, and there is a differential among those remedies which you have thought of in the first 5 minutes of your case taking. And at the end, one of those, in most of the cases and mostly, is the remedy which is the right simillimum in the case. Are you all comfortable if we continue in making up a case of a male 30 years old having ulcerative colitis? The patient is an international cricket player. He is accompanied by his mother when he comes to the clinic. He enters the clinic. So his mother accompanies him when he comes to the clinic, and see the demeanor of the patient. वो कैसे present कर रहा है अपने आप को? He greets me with a polite smile. जो हमारे आते हैं क्लिनिक्स में, अगर हम पूरी तरह से ऑब्जर्वेंट हैं और ऑब्जेक्टिवली खुद भी अपने आप को हमने संभाला हुआ है, and we are really aware of our surroundings and the surroundings the patient is having when he or she is entering the clinic. So the remedies are, remedy पहले 5 मिनट में ही क्लिंच हो जाती है, क्रैक हो जाती है, और as we proceed further in the process of case taking, so हमें उस पर और रोशनी डलती है कि हम कौन कौन सी मेडिसिन थी जो हमने पहले 5-4 मिनट में केस टेकिंग के जिनके ऊपर हमारा ध्यान गया, और which one is the really the right simillimum which we really end up selecting at the end of the case taking. इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और अभी जो मैं आपको इस केस की थोड़ी बैकग्राउंड बोलूंगा, पढ़ूंगा. So most of you, I am sure, will crack the remedy कि हाँ ये दवा होगी, और उसके आगे आगे जैसे केस प्रोसीड होगा, हो सकता है आपके जहन में आ जाए कि हाँ जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है. So this is a case of a male 30 years old. He is suffering with ulcerative colitis. The patient is an international cricket player. He is accompanied by his mother when he comes to the clinic. The mother is just walking side by side of her son. The patient comes inside the chamber and greets me with a polite smile and asks me, "How are you?" आता है, स्माइल से मेरे को वो ग्रीट कर रहा है और मेरे को पूछ रहा है क्या हाल है सर. He has not yet taken his seat, though I have gestured him कि आप बैठिए, सीट लीजिए, पर अभी वो मेरे जेस्चर के बाद, कहने के बाद, अभी सीट उसने नहीं लिया. And he starts saying
I have been diagnosed with ulcerative colitis. In 2015, I was pursuing my engineering studies in 2014, which was a 2 years course. I was doing engineering in power engineering. After finishing first year of the engineering course, I got a job in a remote town away from my native place. मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मेरे को इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा गया एंड द प्लेस जहां मैं गया दैट वाज ए लिटिल रिमोट, दूर था हमारे शहर से. The good thing was that I was paid for this apprenticeship to meet with my expenses. उसका कुछ मेरे को मिलता था ताकि मैं अपने जो खर्चे हैं वो चला सकूं. Before joining the engineering course in power engineering, अब इस केस में आप ये देखोगे कि मैं उसकी सुन ही रहा हूं, मैंने उसको कोई सवाल नहीं पूछा इस केस में. उसके सारी उसकी जो वर्बेटम है उसका जो जितना वो बोल रहा है उसके ऊपर ही मेरा ध्यान जा रहा था और मैं लिख रहा था साथ ही साथ. और एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रहा था कि मदर जो दूसरी सीट पे बैठी थी वो उस समय क्या कर रही है. As the patient was speaking and when he started speaking, the mother had a constant gaze on the face of her son. उसकी मदर की जो आंखें थी, ध्यान था, वो पूरा बच्चे के ऊपर था जैसे वो बोल रहा था. इन बिटवीन ब्लिंक करती थी, वो पूरे फोकस्ड वे से उसको देख रही वो कह क्या रहा है. He said, I was a cricketer. I traveled far and wide to play cricket. I was doing a lot of traveling to play cricket. Like in India, where players have or they get a lot of money in this sport, it is not like this in these countries. कहने लगा कि क्रिकेट में भारत में और दूसरे मुल्कों में जहाँ क्रिकेट इतनी पॉपुलर है वहाँ पैसा बड़ा होता है इसके साथ जुड़ा हुआ, पर इन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका में, ये गेम इतनी पॉपुलर ना होने की वजह से इसमें इतना पैसा नहीं है. Basically, there is not much money to earn out of it. But since I have a passion right from beginning, I want to play cricket. In 2010, after doing my plus 2, I started playing cricket as I was not interested in pursuing further studies. मैं प्लस 2 के बाद आगे पढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा पैशन था कि मैं क्रिकेट खेलूं. I did lot of hard training and played cricket until 2013. बहुत मैंने मेहनत की, 2013 तक मैं बहुत क्रिकेट खेला. My parents said, अब यहां से देखिए, the crux of the case starts from here. My parents said, what is there in this game? ना इसमें पैसा है, ना इसमें कुछ है, ठीक है तेरे को थोड़ी बहुत शोहरत मिल जाएगी. What is there in this game? You should concentrate on your studies. But I did not have any interest in studying further. माता पिता कहने लगे कि क्या रखा है खेलने में, आपको पढ़ना चाहिए. पर मैं था, मेरे को तो इंटरेस्ट कोई नहीं था स्टडीज परस्यू करने में. I started taking classes in plumbing. But my mother said no to plumbing and asked me to pursue engineering. Now, यहाँ
आपने ध्यान देना इन सारी बातों के ऊपर। वो करना क्या चाहता है, उसको कहा क्या जा रहा है। वो इन बिटवीन कोई और छोटा मोटा कोर्स करने की कोशिश करता है इन ऑर्डर टू अर्न मनी। वो फिर मदर कह देती है कि नहीं, ये नहीं, तूने तो करना ही इंजीनियरिंग है। फोकस जो है, एक टारगेट जो है वो फिक्स कर दिया है मदर ने बच्चे के लिए। बट माई मदर सेड नो, यू विल डू engineering only. I started becoming angry as I was not allowed to pursue my passion of playing cricket. मेरे को गुस्सा रहने लगा, मैं गुस्सा आने लगा, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मेरे को करने के लिए नहीं अलाउ किया जा रहा था। I thought it was unfair to me to stop me from playing cricket and being forced to pursue engineering career. Whatever I used to do, I wanted to do it perfectly. जो भी मैं करता था, मैं उसको परफेक्शन से करना चाहता था। If I scored 95% marks, my mom used to say, "Why you did not score 100%?" देखिए प्रेशर कितना है। अगर मैं 95% मैंने लिए तो मेरी मदर फिर भी अनहैप्पी होती थी, और मेरे को ये नहीं कहा कि 95 भी कम नहीं होते, शाबाश बड़ा अच्छा, पर नहीं, उसके उल्ट क्या, तूने 100% क्यों नहीं स्कोर किया। दिस क्रिएटेड ए चैलेंज इनसाइड मी। अब यहां से मोड़ आता है फिर। दिस क्रिएटेड ए चैलेंज इनसाइड मी टू स्कोर 100%। इन माई 10th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड क्रैमिंग, रट्टे मारना। 10th स्टैंडर्ड में मैंने रट्टे लगाने शुरू किए। समझ तो चाहे नहीं आता था, क्योंकि वो फिक्स हो गया था एक टारगेट कि 100 लेने हैं। आई स्टार्टेड क्रैमिंग, लर्निंग बाय हार्ट, रट्टे लगाना शुरू कर दिया टू फुलफिल द नीड ऑफ माय मदर टू स्कोर 100%. There used to be so much pressure from my mother to study. After I finished my first year of power engineering, I went to join a company to pursue apprenticeship. पहला साल इंजीनियरिंग का किया, तो उसके बाद मैं जब अप्रेंटिसशिप करने गया, मैं बाहर का फूड खाता था। आई यूज्ड टू ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड। उस दौरान क्या हुआ, मेरे को लूज मोशन शुरू हो गई अप्रेंटिसशिप के दौरान। और एक दिन ऐसा हुआ दैट आई सॉ अ लॉट ऑफ ब्लड थ्रू माय स्टूल। काफी खून मेरे स्टूल के थ्रू बहा। As it became worse and worse, I went to the family doctor who referred me to the specialist. मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। Specialist diagnosed it as ulcerative colitis. I googled about it. मैंने गूगल किया कि क्या चीज है। डॉक्टर टोल्ड मी कि इस बीमारी के लिए, जो कि ऑटो इम्यून कंडीशन है, you will have to take medicine for life, for the rest of your life. आपको इस दवा को, इस बीमारी के लिए दवा सारे जिंदगी भर आपको लेनी पड़ेगी, और कोई इसका उपचार नहीं है। I was shocked. मेरे को बड़ा धक्का लगा। I used to pass blood along with stool, and there used to be 20 to 25 stools in a day. I used to go, and I felt so weak. At this point, I left my engineering midway. I felt my mom pushed me to do something which I was totally disinclined to do. अब मेरे को ये एहसास हुआ कि वो जो मैं करना चाहता हूं उसके लिए मेरे को किया नहीं, अलाउ नहीं किया जा रहा। जो मैं कर रहा हूं
वो मैं करना नहीं चाहता। I started blaming my mother for doing this to me. मैं अपनी मदर को इसके लिए जिम्मेदार अपने मन में ठहराने लगा। Then he further says, यहां तक आपने एक चीज नोट की होगी कि वो पास्ट की ही बातें किए जा रहा है। इन बिटवीन मैंने ट्राई किया उसको टू ब्रिंग हिम इनटू द प्रेजेंट, पर वो फिर सब पास्ट की पिछली बातें ही चल रही हैं अभी। When I play cricket on the home turf, on the home ground, locally in my city, I feel okay. जब अपने शहर में क्रिकेट खेलता हूं, अपने ग्राउंड में खेलता हूं, मैं बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट होता हूं, बड़ी अच्छी तरह से मैं परफॉर्मेंस देता हूं। बट while playing outside on an international level, I used to feel so much scared as thousands of spectators were watching me play in the field. जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलता हूं क्रिकेट, तो मेरे मन में होता है कि कितने थाउजेंड्स लोग मेरे को देख रहे हैं, वहां उसको अपनी परफॉर्मेंस, जिस कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी का एहसास उसको होता है। I felt burdened while playing for the country. प्रेशर मेरे पे, प्रेशर किस चीज का? परफॉर्मेंस का, और इसके साथ एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है। I feel I might not commit a mistake by being an opener bowler. मैं ओपनर बॉलर होता था और इतना प्रेशर मेरे पे होता था कि मैं पहली गेंद ही वाइड बॉल ना दे दूं जिससे कि मेरी खिल्ली उड़ जाए और हमारी टीम को धक्का बजे और हम गेम हार जाए। I have come to a point that I need help now. I started taking juices and other homemade stuff. Every time I used to go to the stool, I used to pass a lot of blood. हर समय, हर वक्त जब भी स्टूल जाना, मेरे को ब्लड बहुत पास होता था। With the result, I had lot of weakness. एक दफा तो ऐसा हुआ that I suffered a seizure as I was so weak in my health. I was put on IVs and steroids. I used to have fear at the back of mind of passing the stool in my pants every time. Now I try to bring him to the present. अब मेरे को उसको कहना ही पड़ा, अरे भाई मेरे को ये बतलाओ अब आपको क्या दिक्कत है, अब आपको वो क्या चीज है जो परेशान कर रही है। He tells me I go to stool right after eating anything. I do not feel hungry. मेरे को पेट में दर्द बहुत होता है। I have lost so much weight. I have strong smell from my poo, from my stool. और इतनी अब तो हालात खराब है कि मेरे पास खड़ा नहीं हुआ जाता। अब इस सारे के दौरान, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसकी मदर की गेज कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर थी, एज इफ कि ये कुछ गलत न कह दे। इतना मदर ने उसकी मानसिकता को कैप्चर किया हुआ था बच्चे की। नाउ दिस इज द केस। अब आपके जहन में, नाउ आई एम थ्रोइंग दिस क्वेश्चन टू द फ्लोर टू यू ऑल लर्न होम्योपैथ्स। इस सारी स्टोरी को सुन के आपके जहन में क्या क्या आ रहा है? कैन यू प्लीज शेयर योर थॉट्स विद एवरीवन? हाँ जी, अपने इनपुट्स दीजिए। From
from domination. क्योंकि अगर मैं सीधा रूब्रिक पे चला जाऊंगा ना, वो फिर वो लर्निंग नहीं होगी। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा वो तो फरमाया एक फ्लैट सी बात हो जाए विद एवरीवन। हाँ जी, अपने इनपुट्स From domination. क्योंकि अगर मैं सीधा रूब्रिक पे चला जाऊंगा ना, वो फिर वो लर्निंग नहीं होगी। को कांग्रेचुलेशंस और मेरी तरफ से धन्यवाद भी। यहाँ से पता लगता है कि डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी, आपकी जो हिम्मत, कड़ी मेहनत है ना, वो बहुत रंग ला रही है। वेरी थैंक यू नाइस, वंडरफुल। अब आपने बतलाया डोमिनेटेड बाय मदर, बिल्कुल सही बोला। ही वांटेड टू बी परफेक्ट, ये भी बहुत अच्छा सही आपने बताया। उसकी एम्बिशन भी डिसीव्ड है, पर कहीं ना कहीं फिर उसने आखिर में आके अपनी एम्बिशन को ट्रांसलेट कर ही लिया। उसकी एक्सपेक्टेशंस टू हाई हैं पेरेंट्स की उसकी तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, बहुत सही पकड़ा आपने। डोमिनेशन है, ये भी सही पकड़ा। सप्रेस्ड एंगर है, फेस्टिडियस है, पैशनेट है, ड्वेलिंग ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस, ये बहुत सही पकड़ा आपने। आई डू नॉट नो द नेम ऑफ द डॉक्टर हु सेड इट, बट बहुत सही आपने पकड़ी ये बात। और इस चीज को बार बार, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा था, प्रेजेंट में मेरे को लाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वो समझ ही नहीं रहा था कि प्रेजेंट में आना है तो अपनी जो तकलीफ एट प्रेजेंट वो झेल रहा था उसको भी बताना है या नहीं। वो गुम हुआ था पिछले ही अपनी बातों में। ये सब कुछ ठीक है आपने बतलाया, पर एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम केस को पहले 5-4 मिनट में ही, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मेडिसिन जो है वो क्रैक हो जाती है। अब आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने लर्निंग करनी है। जब वो आता है, ही गिव्स मी ए पोलाइट स्माइल, और मेरे को पूछता है कि आपका क्या हाल है, जबकि हाल तो अपना बतलाने आया है। और वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में शुरू हो जाता है। ये बहुत 3 इसके रूब्रिक बनते हैं, और कई केसेस में मैंने देखा है ऐसे ही वर्जन्स के साथ हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बहुत से ऐसे केस हैं, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, जिनमें ये 3 रूब्रिक आते ही आते हैं। सो कैन यू प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन। इसमें ही इसकी दवाई पड़ी है, यहीं पर पड़ी है इसकी दवाई। मैं फिर रिपीट करता हूं। वो अपनी मदर के साथ आता है, ग्रीट्स मी विद ए पोलाइट स्माइल, और मेरे को पूछता है कैसे हो, क्या हाल है। और अभी सीट भी नहीं उसने ली जो कि मैंने उसको ऑफर की। मैंने उसको जेस्चर किया कि आप बैठो। वो एकदम से शुरू हो जाता है कि मेरे को तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। यहीं से मेडिसिन जो है वो उसकी निकल गई थी। पर क्योंकि स्टोरी तो हमने सुननी है पेशेंट की, पता नहीं आगे क्या मोड़ आ जाए। फिर तो हम अगर इस पे ही फंस गए, फिर तो हम प्रेजुडिस हो गए ना। हाउएवर, जहन में आ जाती है कोई ना कोई दवा, जिसको फिर जैसे स्टोरी आगे अनफोल्ड होती है वहां से फिर वो सर अब्रप्ट और रिवरेंस कंफर्म फॉर होती दोज है। अराउंड। सर अब्रप्ट और रिवरेंस फॉर हाँ, दोज अराउंड। ठीक है जी। और कोई आपकी इनपुट? सर अफेक्शनेट। और जी? Sir, affectionate and pleasing desire to please. डिजायर टू Please. प्लीज, ओके जी। और जी? एक रूब्रिक है जो मैंने, जो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने वर्ड बोला, तो वही रूब्रिक है। affectionate returns affectionate. Polite to polite. वेरी गुड। ये आपका नाम क्या है मैडम? Dr. Sonam.
वेरी गुड डॉक्टर सोनम जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जो पोलाइट मैंने यूज किया ना वही रूब्रिक है। पोलाइट स्माइल, एक पोलाइट स्माइल क्या होगी, जो ना थोड़ी सी आपको भी उसकी तरफ थोड़ा ना ध्यान आपका खींच लेती है, बहुत जेंटल सी, बहुत पोलाइट सी स्माइल। सो इसमें ये 3 रूब्रिक हैं, आपने तीनों बोल दिए हैं। पोलाइट है, ही इज अफेक्शनेट एंड ही इज एब्रप्ट। ये तीनों की 3 चीजें उस पेशेंट के बीच में दिखी, और अब आपकी एनालिसिस के हिसाब से which medicine you feel that came to the forefront? हाँ जी, आप प्लीज शेयर करेंगे। आपके पास, जिनके पास भी कंप्यूटर इस समय है, या आप रेपर्टराइज कर सकते हैं जो रूब्रिक्स आपने इस केस में से देखे, कौन सी मेडिसिन आपके पास आ रही है? सर स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया, ठीक है। और जी, स्टेफिसेग्रिया आप किस के जहन में आई है जी? आपको नाम दिलाओगे मेरे को? सर स्टेफिसेग्रिया सिंगल आ रही है, सारे रूब्रिक्स कवर कर रही है। पायल बम बोल रहे हैं स्टेफिसेग्रिया? जी सर, डॉक्टर पायल बम। ओके जी। और आप किसके जहन में क्या आ रहा है जी? सर स्टेफिसेग्रिया ही आ रही है। ओके, और आप कार्सिनोसिन आ रही है, कार्सिनोसिन आ रही है। ओके, और जी? सर स्टैफ ही लग रही है सर, डॉक्टर सीमा। ओके सीमा जी। सर मैं डॉक्टर हिंजल। यस अंजल जी, आपको क्या नजर आ रहा है जी? सर स्टेफिसेग्रिया। ओके, और जी, और कुछ? और इनपुट की आपकी, किसी और की? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। सर स्टैफ का एक रूब्रिक और इस केस से रिलेट हो रहा है। हाँ, सर कावर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस। सर ये लड़का करेज, ये कावर्डाइज था ना, अपनी मदर के डोमिनेशन के अगेंस्ट अपने ओपिनियन रखने के लिए कभी कुछ बोल नहीं पाया। So I think this rubric is also appropriate for this case. Cowardice opinion without courage to express own. Okay, wonderful. और जी, और कुछ? चलिए अब हम चलते हैं, हमने क्या किया। आपकी बहुत अच्छी इनपुट आई है, वंडरफुल रूब्रिक्स आपने सिलेक्ट किए हैं, और मेडिसिन के सामने आप आए हैं स्टेफिसेग्रिया। ज्यादातर आपकी जो सिलेक्शन है वो स्टेफिसेग्रिया के ऊपर आके रुकी हुई है, पर इस केस में ये मेडिसिन बहुत करीब है, ये स्टेफिसेग्रिया उस दवा के काफी करीब है जो हमने दी, और भी कई दवाइयां हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, और यही हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो काम आता है, बेस्ड अपॉन आवर नॉलेज ऑफ द मटीरिया मेडिका। इस केस में हाँ, सर अगर पोलाइट टू पोलाइट अगर मैं नहीं लेती हूँ ना, तो फिर मेरी मेडिसिन लाइकोपोडियम आती है। अगर वो नहीं लेते आप तो फिर आती है लाइकोपोडियम। ओके,
ठीक है जी, वंडरफुल। इस केस में कार्सिनोसिन दी गई थी और अब हम कार्सिनोसिन, स्टेफिसेग्रिया, लाइकोपोडियम और भी जो एक दो इसके साथ कोई आ रही हो आपके जहन में, उनका डिफरेंशियल भी करेंगे। तभी हम देख पाएंगे कि व्हाई नॉट स्टेफिसेग्रिया, व्हाई नॉट लाइकोपोडियम, व्हाई नॉट मेडोराइनम, व्हाई ओनली कार्सिनोसिन। इसके जो मैंने रूब्रिक्स लिए वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पहले मैंने पोलाइटनेस ही लिया, पोलाइटनेस, उसमें दो दवाएं, एक कार्सिनोसिन है, दूसरी थुजा है। दूसरा अफेक्शनेट लिया, देन डोमिनेशन बाय अदर्स एग्रेवेट, पेरेंटल डोमिनेशन, अनफेयर लगा, एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, उसके जो चाहना थी उस विपरीत, उसके उल्ट हो रहा था सब कुछ, अपना बढ़िया नहीं। उसको शॉक जब लगा, जब डॉक्टर ने कहा कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आपको सारी उम्र इसकी दवाई खानी पड़ेगी। सो दैट वाज एलिमेंट्स फ्रॉम फियर, फ्राइट, फ्रॉम शॉक। Then he is blaming his mother, reproaches others. He is too passionate about playing cricket, passionate. अब जब वो होम टर्फ पे खेलता है उसको कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बाहर जाता है इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है तो उसको बहुत, उस समय उसकी वो परफॉर्मेंस का जो डर है एट द बैक ऑफ माइंड रहता है, दैट इज टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपीयरिंग इन, आपने बताया भी वो पहले, थैंक यू। और उसको एक फियर ऑफ फेलियर भी है कि मैं वाइड बॉल ना फेंक दूं, बिकॉज आई एम एन ओपनर बॉलर, और वहीं से इंप्रेशन गलत हो जाए। देन ही हैज ए डिजायर टू प्लीज अदर्स। मदर कहती है 95 का क्या करूं, 100 क्यों नहीं आए। सो मदर को प्लीज करने के लिए ही स्ट्राइव्स वेरी हार्ड, क्रैमिंग करता है, रट्टे लगाता है, ताकि वो अपनी मदर के जो सोच है, एम्बिशन है कि उसका लड़का ये अचीव करे, उसको वो फुलफिल करना चाहता है। उसके बाद हमने फेलियर ऑफ फियर एग्जामिनेशन ड्यूरिंग, जब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उसको वो एग्जाम है, उसके लिए वो एक परफॉर्मेंस जो है वो उसका पेपर है, एग्जाम है, उसका इंटरव्यू है। सो ही हैज फियर ऑफ फेलियर एट द बैक ऑफ हिज माइंड ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी ऑफ प्लेइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उसके जहन में क्या है कि मैं अपनी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं बहुत जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, आई हैव टू ट्रेवल ए लॉट, ट्रेवल डिजायर टू। कई दफा क्या होता है, पेशेंट अपने ही अल्फाज बोलता है जो बार बार उसके मुंह से हैं, और वो ही अगर रूब्रिक में फिट होते हों तो वो रूब्रिक हमारे ले लेना चाहिए। सो इन सब को जब हम रूब्रिक्स को लेते हैं और रेपर्टराइज करते हैं तो हमारे पास कार्सिनोसिनम आती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आती है आरम म्यूर नेट्रोनेटम, थुजा आती है, नक्स है, लाइको है, इग्नेशिया, एनाकार्डियम, स्टेफिसेग्रिया जाके 6वें स्थान पे आती है। अब हमने उसकी मानसिकता को समझना है, उसकी जो मेंटल स्टेट है, मेंटल डिस्पोजिशन है, वो कहां कहां से गुजर के आज इस पड़ाव पे पहुंची है। स्टेफिसेग्रिया आपने बतलाई, अब वो क्यों नहीं हो सकती। स्टेफिसेग्रिया का जो पेशेंट है वो बहुत इंडिग्नेशन महसूस करता है, indignation by something done by him or done by others, and he will feel so low, और shame इतनी उसको होगी कि वो किसी भी स्थिति में से निकलते हुए अगर उसको shame और humiliation इतनी हुई हो, उसकी insult इतनी हुई हो, that
वो रिएक्ट नहीं कर सकता और वो सिक हो जाएगा, उसको बुखार हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। और स्टेफिस के पेशेंट के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, बिकॉज ही फील सो सप्रेस्ड, कि वो अपनी बात को कह सके। देयर आर टू रेमेडीज, एक सप्रेस्ड फील करती है, एक रिप्रेस्ड फील करती है। आप सुन रहे हो सबको मेरी आवाज आ रही है जी? यस सर, आ रही है। देयर आर टू टर्म्स, सप्रेशन एंड रिप्रेशन। सप्रेशन कहाँ होती है? वो उन भावनाओं को दबाने के लिए सप्रेशन हम वर्ड यूज करते हैं, जिनको पेशेंट कोशिश तो करता है उभारने के लिए कि मैं कहूं, दूसरे तक अपनी व्यथा को पहुंचाऊं, अपनी तकलीफ को बोलूं, पर वो गले तक लेके आता है, अगेन पुशेस देम बैक, बिकॉज उसको ये होता है कि अगर कहूंगा, बतलाऊंगा, तो मेरी इसमें से इंसल्ट होगी, मेरे को ये लोग जो हैं अप्रिशिएट ना करते हुए मेरी और कमियां निकालेंगे। सो वो अपनी भावनाओं को जहां वो पड़ी हैं उनको ऊपर लेके तो आएगा, पर उनको एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो टिमिडिटी वहां आके लगती है। पर इस केस में क्या था, वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो उसका डोमिनियरिंग जो उसका फैक्टर है, मदर है, उसके सामने सब कुछ बतला रहा है। सो वो कवर्डाइज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन वहां पे खारिज हो गया। अगर वो इतना सप्रेस्ड और होता तो वो मदर के सामने कुछ भी ना बोल पाता। मोस्ट ऑफ द टॉकिंग वुड हैव बीन डन बाय द मदर अलोन। और स्टेफिसेग्रिया का एक और होता है, स्टेफिसेग्रिया इतना ह्यूमिलिएटेड महसूस करता है, इतना इंसल्टेड महसूस करता है कि उसके अंदर एंगर बिल्टअप हो जाती है। उस एंगर को वो फिर नहीं निकाल सकता, बट दो ही सो मच एंग्री इनसाइड, वो एंगर को निकालने के लिए, एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट जो इसकी एक फर्स्ट डिग्री की जो प्रभाव है एंगर का, वो चुप रह जाता है। और लेटर ऑन जब उसकी वो फेज आता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर देन ही थ्रोज थिंग्स। फिर वो थिंग भी क्या करेगा, इधर उधर नहीं करेगा, वो ही विल थ्रो थिंग एट द फेस ऑफ द पर्सन हु हैज ऑफेंडेड हिम। सो हर एक दवा की जो है एक फाइन लाइन है, एक अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। सो यहाँ पे इसलिए स्टेफिसेग्रिया जो है वो खारिज हुई है। इसके साथ मेडोराइनम भी चल रही थी। आगे जाकर मैं आपको बतलाऊंगा कि मेडोराइनम और कार्सिनोसिन के कॉमन ट्रेट्स क्या है। पहले हम कार्सिनोसिन की इस बच्चे के पर्सनैलिटी के साथ इसको कंपेयर करके वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कार्सिनोसिन की कैसी मानसिकता है? कार्सिनोसिन, in order to earn the acknowledgement and approval of others, especially the parents, carcinosin will become very fastidious. He does not want to annoy his parents, due to which his survival lies in pleasing others, especially the parents. आम परिवारों में हमने देखा है कि छोटे बच्चे के कान में ये बात जहन में डाल दी जाती है कि तूने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने लॉयर बनना है। सो उनके लिए एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, और बच्चे जब बार बार पेरेंट्स की वो आकांक्षा को देखते हैं, सुनते रहते हैं, उनके मन में वो टारगेट ऐसा फिक्स होता है कि उनका होता है कि मैंने इसको अचीव करना है। And in the process of achieving that target, they go through all these phases. Fastidious होंगे, pleasing होंगे, दूसरे के please करेंगे, किसी को नाराज नहीं करना चाहेंगे, they will have anxiety about others, हर किसी के लिए empathetic होंगे, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के चलेंगे, और इतने सूक्ष्म हिसाब से वो चलते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो, वो कोई मिस्टेक ना कर दें, बिकॉज उनके जहन में एक वो टारगेट है जो किसी और ने उनके लिए फिक्स किया है।
In certain families, targets are fixed by the parents. The child is expected to achieve that target or goal, though he is totally averse to it. Contradiction. उसके totally contradiction होती है, पर वो ना चाहते हुए भी करता है. He cannot compromise for a low performance because he knows that in such a scenario he will be reprimanded, admonished and reproached. क्योंकि वो सेंसिटिव इतना होता है, वो नहीं चाहता कि मेरे को झिड़क पड़े, वो नहीं चाहता कि मेरे को इसकी वजह से सजा मिले या मेरी रिप्रोच हो. That's why he becomes fastidious. He wants to hit the bullseye. कि वो टारगेट जो फिक्स हुआ है एग्जैक्ट मैं वहां अचीव करूं. And would do a lot of practice and hard work, spending sleepless nights. Sleepless nights spend और कौन करता है? एक मेडोराइनम होता है sleepless night spend करेगा. इधर कार्सिनोसिन भी ऐसा ही करता है. कार्सिनोसिन और मेडोराइनम में कुछ विशेषताएं कॉमन है. कार्सिनोसिन और मेडोराइनम दोनों सी साइड पे जाके अच्छा महसूस करते हैं. कार्सिनोसिनम और मेडोराइनम बोथ लाई इन नी एल्बो पोजीशन. खासकर बच्चे 1 साल की एज के बाद अगर वो नी एल्बो पोजीशन में ही लेटे हों, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी दवा है ये, पोस्चर हमें बड़ा काम आता है. उसमें कार्सिनोसिन और मेडोराइनम 2 ही दवा है. और फर्दर इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. मेडोराइनम इज वेरी प्रोक्रेस्टिनेटिंग. वो आगे 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 डालता जाएगा अपने कामों को, और जब वो इतना ओवरवेल्म हो जाएगा फिर उसको होता है कि अब तो रात भर जागना पड़ेगा. जैसे कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स क्या होता है, वो पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और जिस दिन पेपर है उससे पहली जो रात है उस दिन उन्होंने सोना नहीं है. बिकॉज दे वेंट ऑन पोस्टपोनिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आगे डालते गए, आगे अभी समा पड़ा, जब सिर पे आके पड़ी तभी आके लगे. वेयर एज कार्सिनोसिन ऐसा नहीं है. कार्सिनोसिन सतर्क रहता है, पहले से उसको जिम्मेवारी का एहसास है और वो अपनी तैयारी को इस हिसाब से करता है कि उसको कोई कमी ना रहे. फेस्टिडियस इतना होता है ताकि वह अपने गोल को रीच कर ले. और उसका माइंड इतने हाई ड्राइव में हो जाता है दैट ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ. ही कैन नॉट रेस्ट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस. कार्सिनोसिन को उस समय तक उसके दिमाग को उसको चैन नहीं मिलेगी जब तक वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेता जो उसके लिए फिक्स हुआ है. मेडोराइनम और कार्सिनोसिन की बात करते हुए अगर करें तो मेडोराइनम इज वेरी फॉरगेटफुल. वो काम करते करते ही भूल जाता है. उसने थोड़ी देर के पहले क्या किया वो भी भूल जाएगा. उसकी मेंटल फैकल्टीज जो हैं वो इतनी शार्पन नहीं होती हैं. और मेडोराइनम और कार्सिनोसिन को जब हम कंपेयर करते हैं, कार्सिनोसिन इंटेलिजेंट है बहुत. मेडोराइनम भुलक्कड़ इतना है कि वो अपना नाम तक भी भूल जाता है. और अगर आप किसी मेडोराइनम को कहें कि आपको ये किसी प्ले में एनेक्ट करना है, उसको आपने डायलॉग दे दिया, ही विल फॉरगेट द डायलॉग इन बिटवीन, और वो ही कैन नॉट बिकम ए गुड एक्टर. इनकी फूड की जो विशेषताएं हैं, खाने की वर्जन्स हैं या इनकी क्रेविंग्स हैं, वो भी कुछ कुछ एक्सट्रीम ही होती हैं. मेडोराइनम इज एन एक्सट्रीम पर्सनैलिटी, एक्सट्रीमिस्ट है, या इधर का या उधर का, या तो मैं पूरा आपका दुश्मन हूं या मैं पूरा आपका दोस्त हूं. वेयरएज कार्सिनोसिन के जो मेंटल डिस्पोजिशन है वो इतनी एक्सट्रीम नहीं होती. दो विथलकॉस सेज कि इसकी भी ड्यूअलिटी है, इसमें भी पोलैरिटी है, पर पोलैरिटी अच्छे वाले साइड में ज्यादा है और दूसरी साइड में बहुत लेट में जाके उसकी पोलैरिटी आएगी, जब वो दूसरे के प्रति बिल्कुल एपैथेटिक हो जाएगा, उसको इनडिफरेंट हो जाएगा, ही विल नॉट केयर फॉर एनीबॉडी. वो अखीर में जाके सेकंड स्टेज में आता है. पर फर्स्ट स्टेज जो इसकी मेनली कार्सिनोसिनम की है वो एंजाइटी फॉर अदर्स है, प्लीजिंग अदर्स है, और अपने आप से इतना फेस्टिडियस होकर काम करना कि उसमें कोई कमी ना रहने देनी. रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस. सो ये सारी चीजें जो कार्सिनोसिनम की हैं वो
इस बच्चे में हमने देखी, जिसकी वजह से इसको कार्सिनोसिन दिया गया। और 30 पोटेंसी में मैंने उसको मेडिसिन दी। 15 डेज के बाद वो आके बतलाता है कि मेरे स्टूल जो 20 और 25 टाइम्स आते थे, ब्लड भी इतना आता था, दे हैव नाउ रिड्यूस्ड टू 2 और 3 विद मिनिमम ऑफ ब्लड, बहुत कम ब्लड आता है, और मेरी एनर्जी लेवल भी इंप्रूव हुआ है, और मेरे को भूख भी लगने लगी है। एंड दी हाईली स्मेली स्टूल, जो इतना प्यूट्रिड स्टूल मेरा आता था, उसकी जो दुर्गंध है वो भी 80% कम हो गई है। 15 डेज के बाद मैंने उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ पीएल दी एंड आस्क्ड हिम टू रिपोर्ट आफ्टर अनदर 15 डेज। सो मेडिसिन इनिशियली देने के 1 महीने के बाद जब वो आया तो उसकी और भी बेहतरी थी कंडीशन में। फिर भी हमने उसको कुछ नहीं दिया, और फिर मैंने उसको 15 डेज के बाद आने के लिए कहा। अब इन बिटवीन क्या होता है, यहाँ पे एक थोड़ा उसको रिलैप्स होता है, और वो रिलैप्स किस वजह से है? रिलैप्स है कि घर में कोई ऐसी बात हुई, बड़े भाई के साथ उसका झगड़ा हुआ, पता नहीं किस बात से हुआ, वो नहीं इस चीज को कहता है, कैन नॉट डिस्क्लोज इट, पर जब से वो झगड़ा हुआ उसमें से मेरे को इतनी टेंशन हुई, उसमें इतनी मेरे को मन के अंदर संवेदना हुई कि मेरे स्टूल्स उसके बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए और ब्लड आना शुरू हो गया। जब मेरे पास वो शुरू से लेके 1.5 महीने के बाद फिर आया, 3rd विजिट पे आता है, तो ये स्टोरी उसकी मैंने जब सुनी, अब यहां पे हमें क्या देना पड़ेगा उसको? शुड आई टेक इनटू अकाउंट कि वो भाई से लड़ पड़ा है, उसमें से कैसी उसकी मानसिकता प्रभावित हुई जिससे ये प्रॉब्लम आ गई है, और आई शुड डू समथिंग एल्स? आपके विचार में क्या करना बनता है इस स्टेज पे जब उसको रिलैप्स हो गया? सर सेम पोटेंसी रिपीट करेंगे। सेम पोटेंसी रिपीट करेंगे। और जी? No repetition, sir. Just wait and watch. ओके। और आपको कोई विचार जी? पे जाएं और 6 पोटेंसी पे जाके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू के दिनों से जब से भी प्रैक्टिस मेंटल टेक्निक पे कर रहे हैं, तो 6 हम देते रहे हैं, रिजल्ट आते भी थे, कई दफा कम आते थे, अगर हम 30 के बाद 6 देते थे। इन द मीन टाइम मैंने व्हाट आई डिड, I studied with Dr. George Vithelkos from the International Academy of Classical Homeopathy. और डॉक्टर जॉर्ज विथलकॉस की टीचिंग में ये एक और बात समझ में आई। उन्होंने बताया कि whenever there is a relapse, आपके एग्जैक्ट वही सिम्टम्स जिसके लिए पहले दिन पेशेंट आया था, वो ही आपके अगर रिलैप्स होके सामने आ रहे हैं कुछ देर के बाद, ड्यू टू एनी रीजन, स्ट्रेस आ गई या कोई और नई इंटरजेक्शन, कोई बीमारी है उसके लिए दवा ले ली, कुछ ले लिया और वही सिम्टम्स आ गए और कोई साइड के सिम्टम्स उसमें नहीं आ रहे, देन you should repeat the same medicine in the same potency. If there are allied subsequent or additional symptoms हैं, then you need to understand the case in latest totality और उसके हिसाब से फिर आप मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। अब इस केस में क्या था, कोई न्यू सिम्टम की एडिशन कोई नहीं हुई, उसकी एग्जैक्ट वही स्टेट रिलैप्स हुई फॉर विच ही केम ऑन द फर्स्ट डे। सो गोइंग बाय दैट टीचिंग ऑफ डॉक्टर जॉर्ज विथलकॉस, मैंने उसको 30 पोटेंसी की सिंगल डोज दी
और उसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट उसको आया कि राइट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर टेकिंग दिस डोज उसके पूरे स्टूल नॉर्मल हो गए, उसकी पेन भी चली गई, ब्लड भी हट गया। और जब वो मेरे पास उसके भी 1 महीने के बाद आया, अब मैंने उसके 1 महीने के बाद बुलाया था इसके भी, और टोटल शुरू से 2.5 महीने हो गए थे। अब ही हैड गेन्ड वेट बाय 2 kgs। उसके चेहरे के ऊपर भी एक ग्लो था, एक आभा थी, एक रौनक थी, एंड ही वाज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। एंड दिस टाइम हिज मदर आल्सो रिपोर्टेड कि डॉक्टर साहब अब ये बच्चा पूरे हौसले में है, इसको काम पे जाना भी अच्छा लगता है, सोता भी अच्छी तरह से है, खाता भी अच्छी तरह से है। सो दिस वाज द केस। आपको कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस एंड आस्क मी एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। सर इस शुरू में फिर 30 पोटेंसी से आगाज करना चाहिए या 6 से, और कैसे फैसला करना चाहिए कि 6 देनी 30 देनी? 201 that we need to see the intensity of the case। अगर तो आपके मेंटल इमोशनल बहुत स्ट्रांग है, आपकी सेंसिटिविटी इतनी स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा आप घबराए हुए हो, टू मच, देन वी नीड टू गिव हाई पोटेंसी। अगर वो इतना घबराया हुआ नहीं है पर उसकी तकलीफ चल रही है और मेंटल इमोशनल स्टेट इतनी एनगल्फ नहीं हुई है, देन वी नीड टू गो फ्रॉम ए लोअर टू ए मीडियम पोटेंसी। जहां मेंटल स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, वी कैन गिव हाई पोटेंसी। जहां इतने मेंटल्स नहीं है, उसकी तो पैथोलॉजी शारीरिक थी, उसकी पैथोलॉजी तो फिजिकल थी, क्योंकि उसको स्टूल्स आ रहे थे, बैड स्मेली स्टूल, ब्लड आ रहा था और मल्टीपल जा रहा था, उसकी वीकनेस हो रही थी। तो हिज पैथोलॉजी वाज मेनली ऑन द फिजिकल स्फीयर। मेंटल स्फीयर इतना स्ट्रांग डिस्टर्ब नहीं था जितना उसका फिजिकल था। पैथोलॉजी वाज ऑन द फिजिकल। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, यहाँ 6 पोटेंसी भी तो दे सकते थे ना? हाँ, वी कुड गिव, दे सकते थे, कोई उसमें, या वी कुड गिव। ओके, थैंक यू। 6 और 30 दोनों की एक ही ऑलमोस्ट रिजल्ट रहना था सर। बस 1 मिनट बाकी है भाई, थैंक यू भी बोलना है। हो सकता है, बट ये तो देखे ही पता चलना था। पर 30 being a low potency, so it is advised कि 30 से शुरू करें तो अच्छा होता है। हाई तो जब मर्जी चले जाओ। सर फर्स्ट 3 रूब्रिक जो लिए थे वो फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज, आवाज डिस्टर्बिंग। पूरे चार्ट ग्रुप में डाल देंगे मैडम। वो पोलाइट था, अफेक्शनेट था और अब्रप्ट था। अब्रप्ट, अफेक्शनेट और तीसरा कौन सा सर? पोलाइट। अब्रप्ट। तो थैंक यू राम सर। मेंबर्स प्लीज आप ये जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मिनट बचा है हमारे पास, तो अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। जो भी क्वेरी होंगी कल सर दे देंगे आपको। और सर से इजाजत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सब। अमेजिंग सेशन। बहुत अच्छा केस रहा भाई, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच।